بس بیٹھ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمان مشرانو کشرانو خویندو اور ٹولو پارٹی وفادارو پتاسو باندے زمان سلام. سلام انتہائی قابل احترام جناب امین مقام صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ نون KPK، جناب سردار مہتاب خان عباسی ایڈوائزر حکومت پاکستان، جناب سراج الدین جو آدھا گھنٹہ پہلے PTI کے MLA تھے، اب وہ مسلم لیگ میں شامل ہو چکے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. جناب ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب، جناب سردار یوسف صاحب وفاقی وزیر اوقاف، جناب عبدالسبحان خان صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ PM ملک جہاں زیب صاحب، MLA ڈاکٹر عباد صاحب، MPA جناب سردار اورنگزیب صاحب، ناظم سوات محمد علی شاہ صاحب، MLA طاہر بخاری صاحب، طاہرہ بخاری صاحبہ معافی چاہتا ہوں، MLA شہاب الدین خان صاحب، اسٹیٹ منسٹر گل خان صاحب، جناب صالح محمد MPA اور KPK کے میرے انتہائی قابل مسلم لیگ کے عہدیداران اور یوتھ ونگ کے نواز شریف کے شاہینوں، MSF اسٹوڈنٹس ونگ کے میرے نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم. آج KPK میں پشاور میں پہلی مرتبہ نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماضی میں بہت مرتبہ پاکستان کے خوبصورت علاقوں میں تھا اور یہاں کے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوانوں کی محبت اور ان کی میزبانی کا ہمیشہ لطف اٹھایا. جب کالج اسکول میں پڑھتے تھے تو یہاں آ کر یہاں پہ شاپنگ کیا کرتے تھے. جب کاروبار میں آئے تو یہاں پر پشاور کے ٹکے اور کباب کھاتے تھے. جب سیاست میں آئے تو میاں نواز شریف یہاں پر کئی مرتبہ آئے. لیکن پشاور میں دوسرے گھر میں آئے ہو؟ نہیں، میں اپنے پہلے گھر میں آیا ہوں. جس طرح پنجاب اور لاہور میرا پہلا گھر اور صوبہ ہے، اسی طرح پشاور اور KPK میرا پہلا شہر اور پہلا گھر اور پہلا صوبہ ہے. بالکل میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میری اللہ تعالیٰ سے میں دست پدعا ہوں کہ یہ عہدہ بہت بڑا چیلنج ہے. ہمارے قائد میاں نواز شریف جو کل بھی قائد تھے،
آج بھی قائد ہے اور کل بھی قائد رہیں گے انشاءاللہ۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میری والدہ محترمہ کی دعاؤں کے ساتھ اور قائد میاں نواز شریف کی سرپرستی میں اور آپ بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کے تعاون کے ساتھ ہم اس مسلم لیگ نون کو صحیح معنوں میں پورے ملک میں اس طرح اس کو پاپولر کریں، عام کریں، خدمت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، امانت کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ، کہ پورا پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت پہ صحیح معنوں میں اقبال اور قائد اعظم کا پاکستان بن جائے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ موٹر وے لاہور سے مردان سے ہوتے ہوئے پشاور تک یہ موٹر وے کس نے بنائی تھی؟ اور اگر یہ موٹر وے نہ بنی ہوتی تو جی ٹی روڈ پر لوگوں کی قطاریں لگتی ٹکٹیں لے کر کے کون کس دن اپنی گاڑی میں جی ٹی روڈ پہ جائے گا۔ آج یہ ویژن وہ نواز شریف کا ویژن تھا جس کی وجہ سے موٹر وے بن گئی، اور اب کراچی لاہور موٹر وے بن رہی ہے۔ اور یہ وہی قائد ہے جس نے امریکہ کے 5 ارب ڈالر کی امداد کو شکریہ کے ساتھ انکار کیا اور ہندوستان کے 5 ایٹمی دھماکوں کے مقابلے میں 6 کر کے پاکستان کو نہیں بنایا۔ اور میرے پشاور کے عزیز بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ابھی 2016 کا واقعہ ہے کہ اے پی ایس میں معصوم بچوں اور اساتذہ نے اپنے خون سے ایک تاریخ رقم کی ہے، اور خدا تعالیٰ کا بے پایا فضل و کرم ہے کہ ان کا خون رائے گا نہیں گیا، اور آج بتدریج پورے ملک کے اندر آپ کی عظیم قربانیوں سے، افواج پاکستان کی عظیم قربانیوں سے آج دہشت گردی اس ملک کے اندر بہت کم ہو چکی، اور وقت قریب ہے جب دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ آج جب میں جہاز میں پشاور آ رہا تھا تو میں نے جہاز میں ذرا آنکھیں بند کی اور میں نے ایسے سوچا کہ میں ایسے پیارے صوبے میں جا رہا ہوں جہاں پر ایک ایسی حکومت پی ٹی آئی کے لیڈر نے کہا تھا کہ نیا پاکستان ہوگا اور تبدیلی آئے گی۔ تو میں نے کہا شاید جب جہاز اترے گا تو ہر طرف ہریاول ہی ہریاول ہوگی، یہ شہر پشاور جو پھولوں کا شہر کہلاتا ہے، ہر طرف پھول ہی پھول ہوں گے، اور میٹرو بس چل رہی ہوگی، لاکھوں نوجوان کالج اور اسکول کے بچوں اور بچیوں کو لیپ ٹاپس دیے جا چکے ہوں گے، لاکھوں بچوں اور بچیوں کو جو کہ بڑے عظیم ماں باپ کی بیٹی اور بیٹے ہیں لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو تعلیم دلوا سکے۔ کسی کے والد اگر اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، کسی کی والدہ اس دنیا سے تشریف لے گئی اور وہ بچے یتیم ہو گئے، ان بچوں کے سروں پر دست شفقت رکھنے کے لیے یہ حکومت ان کو تعلیمی وظائف دے رہی ہوگی۔ اور جس طرح ہم نے پنجاب میں پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا، اس طرح کے پی کے میں کے پی کے انڈاؤمنٹ فنڈ ہوگا۔ اسی طریقے سے میں نے سوچا کہ شاید بجلی جو کہ 5 سال پہلے عمران خان نیازی صاحب نے کہا تھا کہ نہ صرف پورے کے پی کے میں بجلی مہیا کروں گا، نہ صرف پورے پاکستان کو بجلی مہیا کروں گا بلکہ بیرونی دنیا کو بھی بجلی فروخت کروں گا،
मेरे बुजुर्गों, जब मैं आज पेशावर में जब जहाज लैंड किया और मैं हवाई अड्डे से जब बाहर आया तो हर तरफ वो मेट्रो बस की जगह हर जगह खड्डे खड्डे थे और ये वही इमरान खान नियाज़ी हैं जिन्होंने 4.5 साल पहले कहा था कि शहबाज शरीफ तुम लाहौर में मेट्रो बस बना रहे हो कमीशन बनाने के लिए, तौबा नऊज़, तुमने इसके ऊपर 70 अरब खर्च किए और ये जंगला बस है। आज 4.5 साल बाद उनको जब नथिया गली में नींद से बेदार हुए तो उनको पेशावर में भी यहाँ पर मेट्रो बस बनाने का ख्याल आया। वक्त गुजर चुका था मगर इतनी तकलीफ आज पेशावर में लोगों को है कि ट्रैफिक जाम, कारोबार बंद, लोग परेशान और एक बस नहीं जा सके मगर आवाम को बस करा दिए। ये बड़ा जुल्म है, ये बड़ा जुल्म है। और मैं समझता था कि यहाँ पर लाहौर की तरह एयर कंडीशन बसें चल रही होंगी और मेरे ये बुजुर्ग अजीम KPK के अजीम बुजुर्ग, बड़े बहादुर, बड़े जफाकश, बड़े ईमानदार KPK के बसने वाले, इनको एयर कंडीशन बसें की होंगी। और मेरे बुजुर्गों और भाइयों, जब मैंने सब कुछ देखा कि नहीं है तो पता चला कि इमरान खान साहब की जो भड़के हैं वो किस्सा खानी बाजार की तरह किस्सा से आगे गुजर रही है। बिल्कुल मैं आज आपको ये कहने आया हूं और अपने कायद का पैगाम देने आया हूं कि मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, आपने मुझे अपना सदर मुंतखब करवाया है और इलेक्शन की आमद है, इलेक्शन की आमद है। मैं आपसे एक वादा करके जा रहा हूं, उस खुदाए बुजुर्गों बरकत जिसके कब्जे में हमारी जान है और आपको गवाह बनाकर कहता हूं कि बतौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर के मैं इंशाअल्लाह अपनी जान लड़ा दूंगा, मुझे पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। बिजली की बात सुन लें, मैंने अभी जिक्र किया और मैं आपको ईमानदारी से हक़ाइक़ बताना चाहता हूं कि ये वो सूबा है KPK जो एक बड़ा खूबसूरत सूबा है। पहाड़ हैं, फलकपोश पहाड़ हैं जहां बर्फें भी पड़ती हैं, मैदान है, पानी है और हजारों मेगावाट पन बिजली पैदा करने का इस सूबे के अंदर अल्लाह ताला ने आपको ये अजीम नेमत दी है। और इमरान खान नियाज़ी साहब ने 5 साल पहले कहा कि जिस तरह मैंने भी कहा कि मैं 5 सालों में सिर्फ KPK में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को बिजली मुहैया करूंगा और अंधेरे खत्म कर दूंगा। हुआ क्या? आज अभी चंद माह पहले कहा कि हमने 70 मेगावाट बिजली पैदा की है मगर वफाकी हुकूमत लेती नहीं। ओ भाई, यहाँ पर तो बिजली की KPK में शदीद जरूरत है, अभी भी लोड शेडिंग होती है, आपने 70 मेगावाट क्यों नहीं दिया? मैं आपको बताता हूँ कि हकीकत क्या है। यहाँ पर एक मनसूबा जो कि 80 मेगावाट का या 85 मेगावाट का लगा था, जो कि शायद पिछली हुकूमतों ने बनाया, 2016 में वो खराब हो गया, वो आज तक खराब है। ये 80 मेगावाट का मंसूबा आज तक खराब है। इन्होंने जो 70 मेगावाट का मंसूबा लगाया उसकी बिजली पता नहीं कहाँ जाती है, आसमान पे जाती है, चांद पे जाती है, या मरीज पे जाती है, लेकिन हिसाब करें तो इन्होंने इन 5 सालों में KPK को मनफी 10 मेगावाट बिजली दी है, यानी 1 किलोवाट बिजली नहीं दी। ये हकीकत है, इसको कोई
सकता। दूसरी तरफ मेरे बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों और यूथ टीम के जवानों, दोनों पार्टी मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों बताना चाहता हूं दूसरी तरफ कि नवाज शरीफ की लीडरशिप में सीपैक के अलावा जो चीन ने मंसूबे लगाए, हजारों मेगावाट लग चुके, बिजली दे रहे हैं, आप जानते हैं। पाकिस्तान के खजाने और पंजाब के खजाने इस्तेमाल करके 5000 मेगावाट बिजली के मंसूबे 3500 के लग गए और 1200 मेगावाट का चौथा मंसूबा इस वक्त बड़ी तेजी से पाया चट्टी तक पहुंच रहा है। और अगर ये मंसूबे न लगे, और ये मंसूबे कहां लगे हैं, एक भिक्की जो कि लाहौर के करीब है, एक हवेली बादशाह जो जंग में पंजाब में है, तीसरा बल्लव की वो भी पंजाब में है, चौथा जो पंजाब हुकूमत खुद लगा रही है हवेली बादशाह, ये चौथा मंसूबा 5000 मेगावाट लगे हैं पंजाब में बिजली पाकिस्तान को मिल रही है। बिल्कुल और ये 5000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगे पंजाब में हैं। हुकूमत पंजाब ने 2 अपनी जेब से पैसे अदा किए, 2 वफाकी हुकूमत ने अपनी जेब से अदा किए, लगे ये पंजाब बिजली पूरे पाकिस्तान को जा रही है। यही पाकिस्तान की शान है, यही पाकिस्तान का नाम है, यही पाकिस्तान का किरदार है, यही कामयाबी का विजन था, यही इकबाल का विजन था। और यहाँ पर ये 70 मेगावाट बिजली कहते हैं। मैंने बता दिया आपको उसका असल चेहरा। 70 मेगावाट लगी होगी क्योंकि हमें गलत बयानी नहीं आती। आप दिन रात गलत बयानी और झूठ बोलते हैं। 70 मेगावाट लगे होंगे मगर 80 मेगावाट का प्लान खराब पड़ा है, लिहाजा आपने तो मंफी 10 मेगावाट लगाए हैं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, इसी तरह अस्पताल लेने, एक बड़ा अस्पताल केपीके में नहीं बना। आज हजारों केपीके के मेरे बुजुर्ग भाई, बेटे बेटियां पंजाब के अस्पतालों में आती हैं। आदर मसाहिल, जिस तरह ये सूबा केपीके मेरा सूबा है, पंजाब आपका सूबा है, पंजाब के अस्पताल आपके अस्पताल हैं, पंजाब के अस्पतालों में दवाइयां आपके लिए हैं। और वहां पर चाहे रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हो, चाहे पाकिस्तान लिवर एंड किडनी सेंटर लाहौर हो। अभी एक हफ्ता पहले मैं वहां पर गया। पाकिस्तान नहीं बल्कि जनूबी एशिया का सबसे शानदार, सबसे बड़ा वो गुर्दे और लिवर के ट्रांसप्लांट, खाली इलाज नहीं, ट्रांसप्लांट, जिसके लिए हम मरीज कभी हिंदुस्तान भिजवाते हैं, कभी हम चीन भिजवाते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। पिछले 9.5 सालों में मैंने गरीब तरीन बेवा और यतीम के बच्चों को, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों को हमने कुछ 1 अरब रुपया खर्चा और दर्जनों सैकड़ों को हिंदुस्तान और चीन भिजवाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में यह अस्पताल लग चुका और बहुत जल्द जिगर का भी और गुर्दों का भी ट्रांसप्लांट होगा। वहां पर मैं गया एक हफ्ता पहले, तो मैं एक नौजवान से मिला। मैंने कहा आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा मैं साहब हम बल्लू से आए हैं। मैंने कहा शाबाश, कि किस तरह पता लगा? कि हमें ये मेरी वालदा हैं, इनको गुर्दों की बड़ी तकलीफ है, हमें बताया गया कि लाहौर में अस्पताल है, वहाँ जाएं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, ये पाकिस्तान हम सब का है। ये केपीके का है, ये सिंध का है, बलूचिस्तान का है, पंजाब का है, कश्मीर का है और ये गिलगित बल्तिस्तान का है, ये 22 करोड़ आवाम का है, ये हम सब का है। मिलकर हमने पाकिस्तान को नहीं बनाना है। हमारे सपने दिलों की धड़कन
बन्नू से हमारे भाई आए हैं, इनका बेहतरीन इलाज करें। हर अस्पताल में फ्री इलाज होता है। पेशावर में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ वर्कर कन्वेंशन से खिताब करें। उन्होंने कहा है कि नून लीग की सदारत मेरे लिए चैलेंज है। उन्होंने कहा कि KPK में मैं जब आया था तो समझा था कि तब्दीली आ गई होगी, लेकिन यहाँ पर आकर बहुत मायूसी हुई। और आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह थर पार्कर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। एक मरतबा फिर आपको ले चलते हैं पंजाब, जहां पर आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पेशावर में मौजूद हैं और वहां पर वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। खासतौर पर जिक्र का कहीं नहीं होता ट्रांसप्लांट, तो मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि सिंध से आए कि तो पंजाब का नाम है, KPK से आए कि इसका नाम पंजाब है, बलूचिस्तान से आए किसका नाम पंजाब है। मैंने कहा इसका नाम पाकिस्तान रखूंगे, हम सब पाकिस्तानी, आप सब मेरे बुजुर्ग ये कहते हैं मैंने फैसलाबाद में दिल का इलाज कराया। दिल का इलाज तो उसी वक्त हम सब कराते रहते हैं। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, कोई एक